Hello students, before it, we studied about the marriage, the rules of the marriage and about the Gotras. And now our next point is social differences. Let us see. Social differences यानी सामाजिक विभिन्नताएं within and beyond the framework of caste. The framework of caste means वर्ण व्यवस्था, ठीक ना? Within उसके दायरे में and beyond it और उससे परे मतलब क्या बेटा? विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट यानी वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे. लेट अस सी अबाउट इट. अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणास it was mentioned in Dhamsutras and Dhamsastras about the caste. About the caste. What was it? It was a set of hierarchically ordered social categories. यानी सामाजिक वर्ग का एक सोपानात्मक ये जो है क्रमबद्ध सीरीज था वो, in which Brahman claimed to themselves to be on the highest place. Yani at first, they claimed to be first in position in that order, and it was they are saying that all the classification was divine. They considered themselves also as a divine. वे अपने आप को जो दैवी है यानी भगवान के पैरेलल मानते थे. They ranked themselves the first in that social categories, and after that one by one there were placed the other castes, and the lowest caste was at the bottom, which were Sudras, and those were considered untouchable in the society. यानी जो शूद्र थे बेटा उस क्रम में सबसे नीचे रखे जाते थे जिन्हें लोग अनटचेबल यानी अछूत मानते थे. ठीक है. और ब्राह्मणों का क्या कहना था? पोजीशन इन द ऑर्डर वेयर डिटरमाइंड बाय बर्थ, not by their work, not by their duties, their abilities. यानी जो ये क्रम था वो जन्म से निर्धारित होता था, न कि उनके कर्मों से. Now let us see our next point, the right of occupation. यानी according to the Brahmanas, the occupations were also determined on the basis of the Vedas, ठीक ना, castes. Let us see. According to the Dhamsutras and Dhamsastras, there are 4 types of castes. They were also called Varnas. यानी धर्मसूत्रों में और धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी गई जातियों के बारे में, उसके आधार पे जातियों को जो है 4 भागों में बांटा गया है. उन सबको जो है मिला के कहते हैं वर्णास यानी वर्ण. What were those वर्ण्स? Let us see. Those were Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. Our topic is right of occupation. ठीक ना? तो what were the occupation of these varnas? Let us see. As it was decided according to the Dhamsutras and Dhamsastras, the Brahmanas were considered in the society at a highest place, and it was their duty to perform the sacrifices, यानी यज्ञ को करवाना, to study the Veds, वेदों को पढ़ना, to give and take the gifts, और उपहार लेना और देना. These were their occupations. यानी ब्राह्मणों का क्या था कर्तव्य उस समय, व्यवसाय क्या था? यज्ञ करवाना, वेदों को पढ़ना पढ़वाना और उपहार देना और लेना. ठीक ना? एंड व्हाट वेयर द ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रियस? द क्षत्रियस वेयर एंगेज्ड इन वॉर. ये युद्ध में संलग्न रहते थे. इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पीपुल. लोगों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी होती थी. दे ऑल्सो स्टडी द वेद्स. वेद भी पढ़ते थे ये.
है, एंड दे आल्सो परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस, यानी यज्ञ भी करवाते थे, एंड दे यूज टू गिव द गिफ्ट्स टू द ब्राह्मणास, टू देयर अपर upper class, and they used to take the gifts from the lower classes, यानी ये ब्राह्मणों को जो है गिफ्ट देते थे और अपने से नीचे वाले क्लास वालों से गिफ्ट लिया करते थे। तो क्षत्रियों के क्या हुए काम? युद्ध करना, अपने प्रजा की सुरक्षा करना, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करवाना, उपहार देना और लेना, यानी कि ब्राह्मणों को उपहार देना और अपने से नीचे वालों से उपहार लेना। नाउ the next word was Vaishyas. What was the occupation? What was the duty of Vaishyas? They used to study Veds. They also performed the sacrifices. यानी वो वेद भी पढ़ते थे और यज्ञ भी करवाते थे। They used to give gifts. उपहार देते थे। They used to perform the trade, agriculture and pastoralism. यानी वो कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे और जो है पशुचारण का काम भी करते थे। These were the occupations of Vaishyas, ठीक ना। And the last caste was Shudras, which were considered untouchable. What was their occupation? Their only occupation was to surveying higher वर्णास, यानी अपने से ऊंचे वर्णों की सेवा करना ही उनका काम होता था। सुने, यानी जितने भी जो है काम है वो सेवा करने से रिलेटेड होते थे, चाहे वो कपड़े साफ करना हो, जूते बनाना हो, बाल बनाना हो या जो कुछ भी करना हो, मतलब दे वेयर एज ए सर्वेयर ऑफ अपर कास्ट, ठीक ना। एंड दे दोज वेयर कंसिडर्ड अनटचेबल इन द सोसाइटी, इन्हें अछूत कहा जाता था बेटा। दीज वेयर द फोर वर्डर्स इन द सोसाइटी एंड दीज वेयर द occupations of those brahmanas, kshatriyas, vaishyas and shudras. And brahmanas involved three strategies for enforcing the norms. Norms means rules. इन नियमों को फॉलो करने के लिए ब्राह्मणों ने जो 3 नियम भी बनाए थे। What were those 3 rules? Let us see. First was divine origin. According to Brahmanas, they said that the classification of this Vedas is as a divine origin. It is determined, it is decided by birth, not by their action. उनका ये कहना था कि जो भी ये वर्गीकरण है वो दैवीय उत्पत्ति के समान है, दैवीय वर्गीकरण है। यानी धर्मसूत्रों में और धर्मशास्त्रों में ऐसा ही लिखा गया है, ये हमने नहीं बनाया है, ये जो है दैवीय वर्गीकरण है, इसे सबको फॉलो करना चाहिए। तो ये उनका कहना था। और दे यूज टू एडवाइज द किंग्स, वो राजा लोगों को जो है सलाह दिया करते थे, दैट यू शुड ऑब्जर्व ऑल ओवर योर किंगडम्स, दैट दिस रूल्स शुड बी फॉलोड बाय द पब्लिक, बाय द सब्जेक्ट। वो राजा लोगों को आदेश देते थे कि देखिए आपको अपने राज्य का निरीक्षण करना चाहिए कि सारे जो भी नियम है वो पालन किए जाने चाहिए। आप ये देखें कि कहीं शूद्र जो है वो वैश्य वाला काम तो नहीं कर रहा है या क्षत्रिय वाला काम तो नहीं कर रहा है। तो दे एडवाइज द किंग्स टू ऑब्जर्व द पीपल वेयर दे डूइंग देयर ओन ऑक्यूपेशन और नॉट, कि वो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे थे या नहीं। नेक्स्ट है बेटा, परसुएड पीपल। ब्राह्मण्स आल्सो परसुएडेड पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, कि उन लोगों को समझाते थे पब्लिक को, देखिए आपका जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है इट इज डिसाइडेड बाय बर्थ एंड इट इज आल्सो मेंशन्ड बाय मेंशन्ड इन धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। उनका ये कहना था कि ये सब कुछ जो है आपके जन्म के आधार पर निर्धारित है, पहले से ही डिवाइन है, डिवाइन क्लासिफिकेशन है, और ऐसा जो है धर्मसूत्रों में और धर्मशास्त्रों में जो है लिखा गया है, ये हमने नहीं किया है। इट इज ए टाइप ऑफ डिवाइन क्लासिफिकेशन, ऐसा लोगों को समझाते थे। ठीक है बेटा।
Now, our next point is non-Kshatriyas kings. But before it, please see in your textbook, page number 62. There is a source 7, प्रॉपर सोशल रोल्स. देखिए बेटा, आप अपनी किताब में देखिए, पेज नंबर 62 पे सोर्स 7 है, प्रॉपर सोशल रोल्स. यानी प्रॉपर सोशल रोल्स मतलब उचित सामाजिक कर्तव्य. रोल्स मीन्स कर्तव्य. What is mentioned in this source? Please listen for a minute. It is a story from the Adi Parva of the Mahabharata. You know that Adi Parva is the first section of Mahabharata. In this story, it is told that once upon a time, uh, Drona used to taught the archery to the Kuru princess, and once they are reached a Caribbean boy whose name was Eklavya, uh, who dwelt in forests. He requested Drona that he also wanted to uh, study about the archery. Hmm. He also wanted to take education about it from him. But Drona denied for it because he said that I teach only to the royal families, no, not to others. Hearing it, Eklavya returned to the forest. He made a statue of Dronacharya, worshipped him, and accepted him just as his teacher, and began to practice of archery himself. And it was an event when Pandavas went into the forest for hunting with their dogs. hmm, with their dog, uh, their dog approached to Eklavya, and as he saw Eklavya in black डियर क्लॉथ्स, यानी उसको काले हिरण की उसमें स्किन में जब उसने देखा, ही बिगेन टू बार्किंग, उसने जो है भौंकना शुरू कर दिया, है ना. बीइंग एनॉयड फ्रॉम इट, एकलव्य व्हाट डिड यू सी, एकलव्य shot 7 arrows into its mouth. Hmm. And when the dog returned to the Pandavas, they were amazed to see that display of archery. जब वो कुत्ता तीर के साथ मुंह में तीर लिए हुए पांडवों के पास गया, तो वो लोग उसे देख करके जो भौचक्के रह गए. एंड व्हेन दे सर्च्ड एकलव्य, he told them that I am a pupil of Guru Dronacharya. Hearing it, Pandavas returned to Guru Dronacharya, and Arjun reminded Guru Dronacharya about himself, that he blessed him, that that uh, he was the क्या कहोगे उसको, बेस्ट ऑफ ऑल आर्चर्स इन द वर्ल्ड. उन्होंने कहा था कि तुम धनुर्धारी में सबसे अच्छे हो, बट देयर इज वन हु इज मोर बेटर देन मी. हियरिंग इट, व्हेन द्रोणाचार्य went to the forest with the Pandavas, Eklavya greeted him very well, and as Guru Dronacharya demanded him that please give me your thumb of your right hand as my tuition fee, Eklavya did not hesitate at all. He at once cut his uh, thumb himself and handed it to Guru Dronacharya. Thus, he became some weaker in archery, but it was a poor action, a poor work of Guru Dronacharya. Why? Because only to keep his words, he cut the thumb of a best archer. Now let us see our next point.
क्या समझ गए ना? यानी कि गुरु द्रोणाचार्य अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, ही डिड ए काइंड ऑफ सिन, कि उन्होंने जो है उस एकलव्य का जो है अंगूठा ही कटवा लिया। ऐसे भी गुरु होते थे उस समय। कहने का मतलब ये है कि इतने ज्यादा जो मतलब लोग जिनको पूज्य मानते थे वो भी इतना जो घृणित कार्य करते थे। चलिए चलते हैं बेटा about our next point, non-Kshatriyas kings. चले, let us see. Non-Kshatriyas kings. According to the Dhamsutras and Dhamsastras, huh, it was clear that only Kshatriyas could be the kings. यानी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में जो लिखा गया था उसके अनुसार पंडितों का यह कहना था कि केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग ही राजा हो सकते हैं, नो वन एल्स, और कोई नहीं। बट according to the Buddhist text, हाँ चलिए ये चलते हैं। There are find out some rulers which did not belong to the Kshatriyas families, but they belong to other lower classes. Let us see about these rulers, some of these rulers. First is Mauryas. According to the Buddhist text, it is said that Mauryas were of Kshatriyas families. यानी बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट में ग्रंथ मिले हैं उसके अनुसार तो मौर्य लोगों को जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त गुप्त है, ये सब जो है ना, इनको क्षत्रिय माना गया है। वाइल ब्राह्मणास फ्रॉम द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट इट इज सेड दैट मौर्यास बिलोंग टू लोअर कैटेगरीज। तो ना ब्राह्मणों के अनुसार ये मौर्य लोग जो थे वो लोअर कैटेगरी के थे। चलिए नेक्स्ट, शुंग। शुंगास रूलर्स वेयर शुंगास एंड कान्वास है। शुंग और कान्व ये जो है राजा जो थे, दे बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिलीज, ये लोग ब्राह्मण थे। while it was the rule that only Kshatriya could be the king, but instead of Kshatriya they were Brahman, but they ruled over the king for a long time, and those rulers were considered a powerful king. ठीक ना? नेक्स्ट बेटा शकास। शकास came from Central Asia, and those were of barbarian castes, and Brahmins called them as a Malechhas. ब्राह्मण लोग इनको मलेच्छ कहते थे, आदिवासी जनजाति टाइप कहते थे। It was considered that they were illiterated, non-educated. But according to a Sanskrit text, it is found out that Rudradaman, who was a famous ruler, of Shaka's dynasty, he rebuilt Sudarshan Lake and also mentioned on an inscription about it. यानी कि रुद्रदमन ने जो सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण कराया, उसके बारे में जो संस्कृत में लिखवाया भी। These things indicate that those were not Malechhas, but they were educated. ये बात ये साबित करती है कि वो लोग जो है मलेच्छास या अनएजुकेटेड नहीं थे, बल्कि वो लोग जो है शिक्षित थे, वो सभ्य थे। ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते बेटा। सातवाहनस। सातवाहनस रूलर्स वेयर बिलोंगिंग टू द ब्राह्मण फैमिलीज। ठीक ना? दे वे ब्राह्मणास एंड दे आल्सो परफॉर्म द एंडोगामी, यानी जो है ये अपने ही गोत्र में जो शादियां भी करते थे। इट वॉज फाइंड आउट, एंड वन ऑफ द सातवाहनस रूलर हु वॉज मोर फेमस, ही वॉज गौतमी पुत्र Siri Satkani. Siri Satkani claimed about himself that he had a unique Brahmana's idealism. What was it? He said that I shall break the pride of the Kshatriyas. उसका यह कहना था कि मैं क्षत्रियों का घमंड तोड़ दूंगा। हाँ?
मैं क्षत्रियों का घमंड तोड़ दूंगा। और ही आल्सो ऑब्जेक्टेड, अपोज्ड ऑफ इंटर मैरिज, यानी he said that it is not possible to marry in other words। उसका ये कहना था कि लोग किसी भी अलग दूसरे वर्ण में शादी नहीं करेंगे, उन्हें अपने वर्ण में शादी करनी है, इसे जो है सख्ती से पालन किया जाए, और मैं क्षत्रियों का जो है घमंड तोड़ के रहूंगा। इस तरह की बात जो है ये गौतमी पुत्र श्री सतकानी ने कहा था। बट इट इज ऑल्सो फाइंड आउट दैट ही डिड नॉट फॉलो हिज ओन वर्ड्स। ऐसा भी पता चला कि उसने खुद के कई गई बातों को फॉलो नहीं किया, बिकॉज इट इज फाइंड आउट दैट he settled a marriage alliance with the king of रुद्रदमन, यानी रुद्रदमन की रिश्तेदारी में उसने शादी भी की। इसका मतलब उसने भी जो है, यानी श्री सतकानी ने भी अपनी बातों को जो है कायम नहीं रखा। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।